بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے۔ ابھی کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے کہ میری مدر ان لا نماز پڑھ رہی تھی، ظہر کا وقت ہوا چاہتا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کوئی 10-12 ہزار اپنی ٹیبل پہ سامنے رکھے ہوئے تھے اور وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور انفارچونیٹلی جو میڈ تھی وہ جاتے ہوئے دروازہ کھول کر چلی گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کی ایک فرینڈ جو تھی، جو کہ اسکارف کرتی تھی، بڑی نیک خاتون تھی، وہ آئیں اور آ کے ان کے ساتھ گپے لگانا شروع کر دیں۔ یہ خاتون جو تھی یہ محلے میں ہی رہتی تھی۔ اچانک میری ساس کو واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جب وہ واش روم سے واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر جو انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے، 10-12 ہزار ان کے پاس تھے، جو انہوں نے کسی ضرورت کے تحت رکھے ہوئے تھے، اور کہ بھائی میں وہ آئیں گی خاتون تو میں ان کو دوں گی، جن سے انہوں نے کپڑے منگوائے تھے۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر وہ پیسے نہیں تھے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اب وہ اتنی مہذب خاتون تھی جو محلے میں ہی رہتی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کو فوراً کلک کیا کہ یہ پیسے ضرور اس خاتون نے اٹھائے ہیں، لیکن شرم کے مارے وہ اس سے پوچھ ہی نہ پا رہی تھی کہ بھئی میرے پیسے یہاں پڑے تھے، تم نے تو نہیں لیے، کیسے پوچھتی؟ محلے داری تھی اور کافی عرصے سے، کئی سالوں سے ان کے ساتھ آنا جانا تھا، لیکن وہ بہت پریشان ہوئی اور وہ نہ کہہ پائیں، اور وہ خاتون کچھ دیر بیٹھ کے چلی گئی۔ انہوں نے ہر طرف پیسے ڈھونڈے، نہ ملے، انہوں نے چیک کیا کہ گھر میں کوئی آیا تو نہیں، آوازیں دی، کوئی بھی نہیں تھا گھر میں، بس وہی خاتون آئیں اور پیسے لے کے چلی گئی۔ میری ساس کو اس چیز کا بہت دکھ تھا۔ ایک تو یہ دکھ کہ پیسے چلے گئے، دوسرا جو زیادہ بڑا دکھ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک انتہائی مہذب عورت تھی جس نے یہ حرکت کی، اور وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اتنے ہمارے ان سے تعلقات تھے، شادی غمی پہ ان کے ساتھ آنا جانا تھا، تو اس نے یہ کیا حرکت کی؟ اور کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں تھا، اگر گھر میں کوئی اور ہوتا تو وہ سوچتی کہ شاید فلاں آیا اور وہ لے گیا، لیکن گھر میں کوئی نہیں آیا اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے اوپر وہ شک کر سکتی ہیں کہ یہ آیا تھا اور یہ پیسے اٹھا کے لے گیا۔ جب میں کالج سے واپس آئی تو میری ساس نے یہ بات مجھے بتائی کہ اس طرح سے وہ خاتون آئی اور وہ ابھی بیٹھی ہی ہے، میرے سامنے ٹیبل پہ پیسے پڑے تھے، میں واش روم گئی ہوں، واپس آئی ہوں تو پیسے وہاں نہیں تھے، اور گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے بھی بہت افسوس ہوا۔ مجھے پہلے بھی تھوڑا سا شک تھا کہ یہ عورت کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہے اور کچھ ضرورت سے زیادہ چالاک ہے، اور میں اپنی ساس کو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکی تھی کہ ممی اس سے ذرا خبردار رہا کریں کہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ اینی وے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسی ان کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں کہ آپ منہ پہ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے چوری کی ہے۔ کافی دن گزر گئے، وہ خاتون نہ آئیں۔ کچھ دن کے بعد جب وہ دوبارہ آئیں تو میری ساس جو تھیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جب ان کو دیکھتی تھی ان کو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ یہی ہے جس نے میرے پیسے اٹھائے ہیں، پتہ نہیں اس نے اور کیا کیا اٹھایا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی، اور دکھ کی محفل ہو تو انسان کو اتنا ہوش بھی نہیں رہتا کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے۔ ہزاروں جو لوگ آتے ہیں اور کئی دن تک آتے رہتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اس عورت پر نظر رکھنی ہے۔ کچھ دن ہوئے کہ میری بیٹی نے شور ڈال دیا کہ ماما میرا لیپ ٹاپ نہیں ہے۔ میں نے اپنے سامنے سٹڈی ٹیبل پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا اور اب وہ نہیں ہے۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں، میں نے ساری کبرڈز دیکھ لی ہیں، میں باہر لے کے بھی نہیں گئی، فوتگی کی وجہ سے میں تو یونیورسٹی بھی نہیں گئی، اور میرا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا، اور اس میں میرے تمام جو ہیں وہ ڈاکومنٹس اور تمام فائلز تھیں، اور میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں کیسے پڑھوں گی؟ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے بچے تو ہیں وہ سارا کچھ لیپ ٹاپ سے ہی پڑھتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اپنی میڈ سے پوچھا کہ آج گھر میں کون کون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ آئے تھے، اور وہی خاتون جو ہماری محلے دار تھی وہ آئی تھی باجی، اور وہ اوپر گئی تھی، اوپر جو ہے وہ آپ کی دیورانی سے ملنے گئی تھی، اور پھر وہ واپس آ کے گھر چلی گئی۔ مجھے ایک دم میرا دماغ گیا اس طرف کہ یہ آج پھر یہ خاتون کوئی چیز اٹھا کر لے گئی ہے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں کہتی کہ بھئی ہاں تم آئی تھی، تم نے یہ لیا، تم نے وہ لیا، میں اس کے ساتھ یہ بحث مباحثہ کرتی۔ میں نے اپنی میڈ سے پوچھا کہ کیا وہ ہماری پرانی کام والی بھی آئی تھی جو اس کے گھر کام کرتی؟ اس نے کہا ہاں آئی تھی۔
बाजी वो आई थी और मैंने उसको कहा काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ड्राइंग रूम और स्टडी टेबल वगैरह सारा कुछ साफ़ किया। जब मैंने कड़ियाँ मिलानी शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेड उसकी आलाकार थी और वो घरों में काम करती थी और चोरियां करके चीज़ें उस तक पहुंचाती थी और वो फिर आपस में बांट लेते थे, उसको सेल करके बांट लेते थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने एक मैसेज उसको कर दिया कि लैपटॉप चोरी हो गया है और मुझे पता भी चल गया है कि किसने चोरी किया है। बस इतने वर्ड्स मैंने लिखे, कोई तफसील ना लिखी। अभी अगले ही दिन मैं कॉलेज से जब आई तो हमारी पुरानी काम वाली आई हुई थी जिसको हमने किसी वजह से निकाल दिया था, और उसने कहा कि बाजी फौतकी का घर है। तो मैंने कहा मैं सफाई कर दूं। तो मैं ये साफ़ कर रही थी तो लैपटॉप यहाँ पड़ा हुआ है इसके अंदर। मैंने कहा यहाँ पे तो 10 दफ़ा देखा था, इस ट्रॉली पे तो था ही नहीं, तो कैसे आज आ गया। बहरहाल मुझे समझ आ गई कि उनको पता चल गया था कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि चोरी किसने की है, और वो वापस जो है उस काम वाली के ज़रिए से ही उन्होंने खामोशी से लैपटॉप वहाँ वापस रख दिया ताकि मोहल्ले में बदनामी ना हो। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, और मुझे इस चीज़ का दुख है कि नमाज रोज़ा करके सर पे स्कार्फ लेके और आप अपना जो है ना इमेज ख़राब करते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। मैं चूँकि एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मेरा काम जो है वो बच्चों के छोटे छोटे मसाइल को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना होता है, ताकि बच्चों में अगर छोटी एज में कोई हैबिट डेवलप हो रही है तो उसको रोका जाए। मेरा आज का टॉपिक है स्टीलिंग, चोरी करना। और चूंकि मेरा ताल्लुक कॉलेज और स्कूल से रहता है, टीचर से रहता है, मैं एक बड़े लेवल पर लोगों के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये चीज़ किस तरह से डेवलप होती है और इस चीज़ को किस तरीके से रोका जा सकता है। देखिए, बच्चों की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं या कॉमन बैड हैबिट्स हैं, उनमें नॉट ब्रशिंग टीथ, वेक अप लेट, डोंट डू एक्सरसाइज, टेल लाइज, बाइटिंग नेल्स, read in dim light, excessive mobile use, eating lots of chocolates and sweets, fight with others, eating junk food, uh, इसके अलावा watching TV too much, never wear shoes, eating with dirty hands। ये ऐसी हैबिट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। ये यूजुअली बच्चों में 1 या 2 या 3 हैबिट्स होती हैं। इनको आप आसानी से इनको दुरुस्त कर सकते हैं अगर आप कांस्टेंट चेक रखें और अगर बच्चों को साथ साथ समझाते रहें और मॉडल बने। वालिदैन बच्चों के सामने मॉडल बने। अगर माँ बाप रोज़ ब्रश करेंगे, अगर माँ बाप टीवी कम देखेंगे, मोबाइल कम यूज़ करेंगे, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वही काम करना शुरू कर देंगे। अगर वालिदैन आहिस्ता बोलेंगे तो बच्चे भी आहिस्ता ही बोलेंगे। अगर पेरेंट्स आपस में लड़ाई करेंगे तो बच्चे भी अल्टीमेटली लड़ाई ही करेंगे। मेरा आपसे कहना ये है कि ये जो स्टीलिंग की हैबिट है, चोरी करने की हैबिट है, ये ज़रूरी नहीं है कि गुर्बत की वजह से हो। मैंने बड़ी-बड़ी, जब हम कॉलेज में थे, बड़ी-बड़ी अमीर कबीर लड़कियों को कैंटीन से समोसे चोरी करते हुए देखा, बर्गर चोरी करते हुए देखा। तो मैं अक्सर सोचती थी कि ओहो, ये तो ब्रिगेडियर की बेटी है और ये इस तरह क्यों चोरी कर रही है। लेकिन मैंने ये चीज़ें लोगों में देखी, बहुत अमीर कबीर और मॉडर्न लोगों में मैंने ये चीज़ें देखी। और गरीब लोग तो करते ही हैं, काम वालियाँ यूजुअली घरों में जब काम करती हैं तो अपनी ज़रूरियात के लिए वो भी चोरियाँ कर लेती हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसकी हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो अनकॉन्शियस मॉडलिंग। अनकॉन्शियस मॉडलिंग से मुराद ये है कि आपके बच्चे जब आपको देख रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर एक माँ बच्चे के साथ मार्केट गई है और उसने चॉकलेट्स खरीदी हैं और ख़रीदने के बाद 2 चॉकलेट्स आराम से जेब में डाल ली हैं और घर आ गई और बच्चे के सामने वो कह रही है, लो जी 10 चॉकलेट्स तो मैंने खरीदी थी, 2 मैंने वैसे ही उठा ली थी। तो और बच्चे के सामने हंस के कह रही है, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा भी यही सीखेगा कि उसने भी यही करना है। वो ये नहीं सोचेगा कि ये सच है या झूठ है या चोरी है या गलत है या गुनाह है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। अगर माँ बाप ये काम करेंगे तो बच्चा भी ये काम करेगा। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस मॉडलिंग। अगर बच्चे मार्केट गए हैं आपके साथ और किसी बच्चे ने कोई टॉय उसको पसंद था छोटा सा और उसने आराम से उठा के, बच्चों पे तो ज़्यादातर लोग शक भी नहीं करते, आराम से उठा के जेब में डाल लिया है और माँ बाप को पता चल गया है और उन्होंने उसको स्नब नहीं किया, उसको फ़ौरन नहीं कहा पुट इट बैक, रखें उसको वापस, ये गलत बात है।
अगर तो एट द स्पॉट आप कह देते हैं कि ये गलत है, इसको वापस रखें, या बच्चे को गुस्से से घूरें आप, उसे कहें कि ये गुनाह है, तो बच्चा उसके बाद ये हरकत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर बीइंग अ पेरेंट्स आप इस चीज़ को सनब नहीं करते, अप्रिशिएट करते हैं और खुश होते हैं, तो बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि कितनी आसानी से हमने ये चीज़ ले ली। उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के पास अगर कोई कलरफुल शार्पनर या इरेज़र देखते हैं या उनका लंच देखते हैं कि बहुत अच्छा है, तो वो उनकी गैर मौजूदगी में वो चीज़ें गायब कर देते हैं, क्योंकि घर में पेरेंट्स ने उसके सामने कोई अच्छा मॉडल नहीं था पेश किया। देखिए, शरीफों के बच्चे शरीफ होते हैं, ईमानदार लोगों के बच्चे ईमानदार होते हैं, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सामने बोलते हुए, हरकत करते हुए हमेशा खबरदार रहें। बाद में अगर आप बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद मॉडल बने और उसको बताएं कि ये गुनाह है, ये गलत है, किसी की चीज़ नहीं उठाते। दूसरी, कम्युनिकेशन रॉन्ग वर्ड्स। अगर आपका बच्चा, समटाइम्स बच्चों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वैसे ही उठा लेते हैं बगैर बताए। उनका मकसद चोरी करना नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि चीज़ अच्छी लगी तो उठा ली। और पेरेंट्स जब कहते हैं तुम तो हो ही चोर, तुम तो हो ही चोर, तो वो टैग हो जाता है। वो बच्चा फिर उसके माइंड में होता है कि मैं तो हूँ ही चोर, तो चलो मैं चोर हूँ तो फिर और भी चोरियां कर लेता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चों को कभी गलत टैग मत करें। रॉन्ग वर्ड्स जो है ना, ये जो आप यूज़ करते हैं, तुम निकम्मे हो, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, बड़ा भाई तो फर्स्ट आ रहा है, तुम तो पास भी नहीं हो सकते, ये होता है टैगिंग, रॉन्ग टैगिंग। ये आपने कभी बच्चों के साथ नहीं करनी। आप उनको कभी मत कहें कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप तो ठीक हो ही नहीं सकते, आप तो पढ़ नहीं सकते, आप तो हैं ही चोर, आप तो अज़ली चोर हैं, पैदाइशी चोर हैं। ये बहुत गलत वर्ड्स हैं और बच्चे इनको अपने माइंड में, अपने दिल में बिठा लेते हैं। फिर वो सारी ज़िंदगी वही कुछ ही करते रहते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको हैबिट हो जाती है ना इस चीज़ की। इसके अलावा मदर और फादर का जो किरदार है ना, वो बहुत अहम है। बच्चे, अगर आप देखें, आप शुरू से अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, आपके बच्चे भी आस्ते-आस्ते नमाज की तरफ राग़िब हो जाएँगे। अगर आप शुरू से ही प्यार मोहब्बत से बोल रहे हैं और एक-दूसरे को सॉरी, थैंक यू वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे भी वही ऑटोमैटिकली यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो माँ-बाप का किरदार ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर बच्चे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गंदे काम करते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस सब की बड़ी वजह ये है कि बीइंग अ पेरेंट्स आप अच्छे मॉडल नहीं हैं। आपने उनको चेक ही नहीं किया, आपने उनके सामने मॉडल नहीं आप बन के रहे कि भई हम तो ये काम कर रहे हैं। और बच्चों को एप्रिशिएट किया करें। आप लोग बच्चों को एप्रिशिएट नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि वालिदैन को बच्चों के साथ बेजा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी एक फ्रेंड को देख रही थी कि उसका कई साल के बाद बेटा हुआ, एक ही बेटा था, और मेरे साथ एक दिन वो मार्केट गई तो उसके बच्चे ने जिस चीज़ पे हाथ रखा वो उसको लेकर देती ही चली गई। जब एक चीज़ से उसने इनकार किया कि मेरे से पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो वो बच्चा रोने लग गया, लड़ने लग गया और उसने कहा कि मैं ले लूँगा, फलाँ के पास है, मैं घर जाके ले लूँगा उससे। ये चीज़ गलत है। बेजा लाड प्यार जो है वो बच्चों को बिगाड़ देता है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उसकी फ़रमाइशें पूरी करेंगे और अगर एक फ़रमाइश नहीं पूरी करेंगे तो उसको पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता इख्तियार करेगा। किसी के पास भी वो चीज़ होगी तो वो उस चीज़ को वो ले लेगा। तो बेजा लाड प्यार उसको मत दें। इस तरह बच्चों के अंदर जो है ना, लालच बढ़ता ही चला जाता है। बच्चे वही करते हैं जैसा हम उनको कहते हैं या जैसा हम उनके सामने परफॉर्म करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि समटाइम्स बच्चे गलती से भी चीज़ें ले लेते हैं किसी की, आप फ़ौरन उनको स्नैप करें, चीज़ उससे कहें कि वापस रखें। आप चोर नहीं हैं, आप उसको ये मत कहें कि आपने चोरी की है, मत कहें। आप कहें कि ये गलती से आपने ले ली है बेटे, आप इसको वापस कर दें क्योंकि ये गुनाह होता है। तो इस तरह अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करें, लेकिन उसको चोर-चोर मत कहें। ये जो चोर-चोर कहना है ना, ये बच्चों को चोर ही बना देता है। मैं बहुत सारे बच्चों के मसाइल आपसे डिस्कस करती हूँ, लेकिन ये जो स्टीलिंग है, चोरी करना, ये इस वक़्त जो है ना, बहुत बड़ा मसला है। यही छोटे-छोटे चोर बड़े होके फिर मुल्क के चोर बन जाते हैं। बड़ी-बड़ी चीज़ें चुरा लेते हैं, लोगों को नुकसान देते हैं फिर आप उस वक़्त कुछ भी नहीं कर सकते। और याद रखिएगा
کہ بچے جو नेकियां करते हैं ना, इसका सवाब बच्चों को तो मिलता है लेकिन वालिदैन को भी मिलता है। इसके अलावा बच्चे जब कोई गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इसका गुनाह बच्चों को तो मिलता ही है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको गुनाह मिलता है, और जब तक वो जिंदा रहते हैं जो भी वो गुनाह करते हैं उनको तो गुनाह मिल ही रहा होता है, लेकिन उनके वालिदैन को भी मिल रहा होता है क्योंकि वालिदैन ने अच्छी तरबियत नहीं की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक बहुत गहरा पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे माशरे में फैलता ही चला जा रहा है। ख़ास तौर पे लड़कों में ये हैबिट बहुत ज़्यादा होती है कि आराम से पैसा नहीं है तो किसी के पैसे निकाल लिए, कोई चीज़ मिसिंग है तो वो चीज़ निकाल ली, लंच निकाल लिया। बच्चों को पैसे, लड़कों को पैसे की क्रेविंग ज़्यादा होती है, उन्होंने शोशा मारनी होती है, दोस्तों को बताना होता है कि जी वाह जी हमारे पास तो ये है वो है, तो इसके लिए बच्चे जल्दी जल्दी स्टीलिंग की तरफ जो है राग़िब हो जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को छोटे वक्त से ही उनको चेक करें और छोटे वक्त से ही उनको बताएं कि ये चीज़ गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं समीना इमरान आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे में कौन सी बैड हैबिट है ताकि हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।